Hello student, welcome to the Brain Social Sciences classes which is run by the Vikash. So today we are going to study about the one chapter which is related to the nationalism in Europe in your history class 10th Cbse. Okay friends, so now let's start today. So you know the meaning of nationalism. राष्ट्रवाद इसकी क्या मीनिंग होती है? जैसे भारत है, भारत के नागरिक का भारत देश के प्रति जो सम्मान है, जो लगाव है, जो देश प्रेम है, जो व्यक्ति है, यही उनकी नेशनल फीलिंग्स है. नेशनल फीलिंग्स मीन्स द पीपल्स हैव ए इनर सोल फीलिंग्स टुवर्ड्स अवर नेशन. द पीपल्स कैन डू एनीथिंग फॉर अवर नेशन. पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तान के लिए अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर सकता है, यही उसके लिए देश प्रेम है. वैसे ही भारत का नागरिक भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देगा, ये भारत के व्यक्ति का, भारत के नागरिक का भारत के प्रति देश प्रेम है. Is it when the peoples have a national feelings towards our nation, so in that situation our country becomes free, like India in 1947 becomes free because of the contribution of our national freedom fighters. Those have a inner soul feeling towards our nation. Is it? So this feeling is first time in the whole world comes from the French Revolution, and might have you have read in a class 9th the French Revolution in a detail. The motto of the French Revolution is equality, integrity, and fraternity. Means समानता, समता, समानता एंड विश्व बंधुत्व भाईचारे का भाव ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको मिला. फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर इज ए बेसिक चेंजेस. व्हाट फ्रांस में क्या था? राजा का शासन था. उस राजा के शासन से जो है हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े अंडर द रूल ऑफ Napoleon Bonaparte. You know the Napoleon Bonaparte. Later on we will study about the Napoleon Bonaparte. Is it? So French Revolution is nothing but it's a journey from the monarchy to democracy. You know what is monarchy to democracy? Monarchy means what? What is the meaning of monarchy? Monarchy is what? This is monarchy. मोनार्की मीन्स जहाँ पे राजा का शासन होता है, एंड डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पे जनता का शासन होता है. इज इट? सो दिस इज कॉल्ड एज मोनार्की एंड डेमोक्रेसी. In meaning of nationalism and idea of nation, but in this chapter we will study about the what we will study about in this chapter. In this chapter we will study about the first one topic, the French Revolution and the idea of nation. दूसरा, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ. इज इट? दूसरा, एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1833 टू 84 मीन्स 1830 से 1848 के बीच बहुत सारी जो रेवोल्यूशन हुई, क्रांतियों का जो दौर चला, उससे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना डेवलप हुई. मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द जर्मनी विल यूनाइट एंड इटली विल यूनाइट. नेक्स्ट टॉपिक इज visualizing the nations and Napoleonism and imperialism. Nationalism, already we have explained. Imperialism is साम्राज्यवाद, नए साम्राज्य को बनाना. Is it? So what is the benefit then? After we will study about the benefit and impact of French Revolution, entry of Napoleon and Napoleon Code 1804. So in this chapter, the rise of nationalism in Europe, there is one figure which is given here. This figure is the painting by the Frederick Sorrow. Then in 1848, the French artist is a democratic and social republic. Its picture represent that there is a one thing. What? This is called as, this one is what? Statue of Liberty. Statue of Liberty. It's a sign for freedom. The figure shown the torch of enlightenment in one hand and the charter of the rights of the man in other. जिसमें लोगों को क्या मिले? फंडामेंटल राइट्स, विच इज़ यू कैन से दैट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, पार्ट थर्ड ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. आइडिया ऑफ अर्नेस्ट रेनन का क्या आइडिया था? Renan as a nation is the result of long history of struggle, sacrifice and devotion. जो नेशन है वो नेशन का फॉर्मेशन होता है
लंबे समय तक इतिहास में जो स्ट्रगल, संघर्ष, सेक्रीफाइस और डिवोशन होते हैं उसके थ्रू द कॉमन ग्लोरियस पास्ट, कॉमन विल बी द प्रेजेंट एंड कॉमन गोल फॉर द फ्यूचर्स. Is it inhabitant of a national have a right to consult it, and it is a large scale solidarity whose existence in a daily plebiscite. The French Revolution and the idea of nation you just take here. Come to the point. Steps taken by the French Revolution to develop the idea of nation. क्या किया फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने? बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन और महात्मा गांधी ऐसे दो टॉपिक हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है. Is it? कहावत है ना, अर्जुन की नज़र चिड़िया की आंख पर, उसी तरह स्टूडेंट की नज़र अपने टॉपिक में. सो कम टू द पॉइंट. द न्यू फ्रेंच फ्लैग, ओके सॉरी, द आइडिया ऑफ द लॉ पैट्री मीन्स फादरलैंड एंड लॉ सिटीजन द सिटीजन्स एम्फेसिस इन द नोशन of the united community enjoying the equal rights under the constitutions. तो एक भारत माता, एक पिता, बराबर समान राइट्स, अधिकारों की बात होने लगी. देयर इज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया कॉमन फ्लैग बनाया गया. ट्राई कलर चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड मीन्स जो इससे पहले का जो फ्लैग था जो राज सत्ता को बताता था उसको जो है रोक के जनता द्वारा प्रपोज्ड किया गया इस नेशनल फ्लैग की बात की गई. जो है ओथ लिए गए, न्यू सॉन्ग्स बने, नेशनल सॉन्ग्स बने. द स्टेटस जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम नेशनल असेंबली. जो स्टेटस जनरल था जिसका 163 साल पहले जो है अधिवेशन हुआ था, उसके बाद तो अधिवेशन ही नहीं हुआ जो है लुई 14, लुई 16, लुई 17, लुई 18 के पीरियड में. तो उसके लिए एक नई असेंबली का फॉर्मेशन हुआ. द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया. Formulated uniform law citizens with the country means law will be equal to all. Internal custom duties and due were abolished. दोनों जो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थी, मतलब एक जगह से, एक ज़िले से, मान लो अगर हम जा रहे हैं कोरबा से हम चले गए कोसमंडा, कोरबा से चले गए दिपका, गेवरा, हर जगह हमको जो है टैक्स देने पड़ते थे. लोकल कस्टम ड्यूटीज़ बहुत थी, उनको रिमूव कर दिया गया. उनके जगह एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स को लाया गया, जो नेपोलियन ने भी ऐसा किया था. The regional dialects were discouraged in the French and it was spoken and written in the Paris, become the common language of the nation. So you can say that there is a national language concept लाया गया. The French Revolution is toward the rest of Europe. उसके बाद क्या हुआ? The mission and destiny of the French nation to liberate the peoples Europe from despotism and help the people of Europe to become a nation. Is it? So लोग जो है अपने आप को एक नेशन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ा रहे थे. द एजुकेटेड मिडिल क्लास सेट अप द जैकोबिन क्लब्स whose activity prepared the French army, and French army moved to the Holland, Belgium, Italy, and they carried the idea of nationalism to these countries. It means ये जो है नेशनलिज्म का जो आइडिया केवल फ्रांस में ही नहीं रहा बल्कि बाकी अदर कंट्री, बेल्जियम में, इटली में, हॉलैंड में, बाकी जगह भी गया. लोग वहाँ भी स्वतंत्रता, समानता, समान अधिकार की मांग करने लगे. अब हम देखते हैं राइज ऑफ नेपोलियन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन जो था वो एक आर्मी में, कह सकते हो आर्मी चीफ कमांडर था. उसका पहला अभियान चला इटली पे. उसने इटली पे 2 अभियान किए. तो दोनों अभियान जो इटली के उसने किए, इससे जो उसने अपनी आर्मी बुद्धिमत्ता या कह सकते हो उसने अपने आप को प्रूफ किया. और धीरे धीरे जो है, वैसे भी फ्रांस की स्थिति 17 डायरेक्टरी रूल्स और नेशनल असेंबली कन्वेंशंस के रूल्स के बाद बहुत ख़राब हो चुकी थी. तो ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उस पूरी कंट्री को संभाल पाए. एक बार का एक ऐसी वाक्य है, जब लुई 14 पे एक बार जब अटैक होता है, काफ़ी लोग उसे घेर लेते हैं, तो वो ये कहता है कि लुई 14 को तो उसी समय जो है सेनाओं का सहारा लेके, जो है पुलिस का सहारा लेके उस बल को दमन कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है. तो आप कह सकते हो कि ये सीधी पहले से ही जो है वो स्ट्रेट फाइट का समर्थक था. नेपोलियन जब फ्रांस में आता है आर्मी पर्सोनल के रूप्स में, धीरे धीरे जो है वो पूरे अपने आप को कैप्चर कर लेता है. उसने बहुत सारे जो है सिविल प्रोसीजर कोड्स, उसने एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स किए. उसमें कई सारे प्रोसीजर कोड्स उसने बनाए. इसमें पहला है जैसे नागरिक संहिता बनाया, सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बनाया, पेनल कोड जिसे फौजदारी कानून कहते हैं, अपराध मूलक की प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया, व्यवसायिक कोड बनाया, कमर्शियल कोड. तो इस तरह से 5 कोड उसने बनाए.
Napoleon said that introducing the many of the reforms in territory came under his control that have already introduced the French. पहला point. Second point was this is the positive impact of Napoleon. Introduced the Napoleon Code of 1804 with all privilege based on birth, established equality before the law, and secured the rights to property. In many parts of the Europe, like to the Dutch Republic, Switzerland, Italy, Germany, simplified administrative division, abolished the feudal system, freed peasants from the shelter of manorial dues. जितने भी फ्यूडल थे, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसको ख़त्म किया. पूरे राज्य को जो है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में डिवाइड किया. ठीक है. सर्फडम, मोनोरियल जो ड्यूज होते उसको भी ख़त्म किया. रिमूव द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द टाउन्स में जो छोटे छोटे यू कैन से दैट मीडिएटर उनका पूरा अधिकार होता था, उस अधिकार को उसने ख़त्म किया. ही लेट द स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म दे आर अप्रिसिएटेड बाय द पीजेंट्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड इवन बाय द कॉमन पीपल्स. So, but there is a drawback of the Napoleon. In the area conquered, the reaction of the local population, the French were mixed. So he increased the taxation बढ़ा दिया. सेंसरशिप मीन्स प्रेस पे प्रतिबंध लगाना. आप कुछ भी अपने मन से छाप नहीं सकते थे. अगर गवर्नमेंट क्या करती थी, अगर आपने अपने मन से छापा, आपको इग्नोर करती थी. इफ़ इग्नोर्ड सॉरी अगर आपने कुछ भी अगर छाप दिया, प्रिंट कर दिया, तो गवर्नमेंट आपको वार्निंग देती थी. इफ़ वार्निंग वॉज इग्नोर्ड दैन योर प्रिंटिंग प्रेस वॉज कॉन्स्फिकेटेड, सीज कर लिया जाता था. फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करने के लिए कंपलसरी कर दिया कि नहीं भर्ती होगी. एंड ऑल वेट्स एंड मेजर्स एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उसने लाए. ठीक है. तो दीज आर अबाउट द नेपोलियन. जो okay, for today, let's after we will discuss about the next chapter. Okay.